Good morning, children. I am Manjana ma'am. We had already started with the chapter Reproduction in Organisms. We had discussed on page number 14 the different pollination techniques found in the higher angiosperm plants. Today we are going to discuss the topic given on page number 14, 1.2.2 fertilization. Now children, we have heard this term many times in our previous class also. How can we define fertilization? Fertilization क्या है? It is a process in which the two different gametes fuse together to produce a structure which is called as fertilized egg or zygote. The fusion of gametes can also be defined or called as syngamy. The process called syngamy results in the formation of a diploid zygote. The term fertilization is also often used for this process. The terms syngamy and fertilization are frequently used through interchangeable. It has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees and even small lizards and birds, the female gamete undergoes development to form new organisms without fertilization. This process is called as parthenogenesis. तो चिल्ड्रन, क्या डिफरेंस है फर्टिलाइजेशन में और पार्थेनोजेनेसिस में? Fertilization or syngamy can be called as the fusion of two different gametes, male and the female, and results into a structure which is called as fertilized egg or zygote. The ploidy of the zygote is 2n, that is, it has double the number of chromosomes of each gamete. Right? On the other hand, parthenogenesis is the simplest process in some of the organisms like rotifers, honeybees, etc., where the female gamete undergoes the different changes and develops into a new individual. और ऐसा प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सिर्फ फीमेल गैमीट से ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं. I hope it is clear to all of you the difference between parthenogenesis and fertilization or syngamy. Now the next question may arise that where does this syngamy occur? Fertilization कहाँ होता है? It can be of two types, external as well as internal fertilization. Now let's see what is external fertilization all about. In most aquatic organisms such as majority of algae and fishes, बहुत सारी जो अलग अलग प्रजाति हैं काई की और फिशेस की और amphibians also, syngamy occurs in the external medium that is water. इन तीनों कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कहाँ होता है? बॉडी के बाहर होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. Now children, the question may come into the mind कि when the process of fertilization is taking outside the body, then definitely a medium is needed. तो जो most prevalent medium जो है, जो कि external fertilization के लिए ज़रूरी है, वो क्या है? Water. So water is the most essential medium which is needed for the process of fertilization. Organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium water in order to enhance the chances of syngamy. अब देखिए, जो organisms externally fertilize करते हैं उनके अंदर मेल और फीमेल organisms जो होते हैं, they produce a large number of gametes which are released into the water. And the question may come कि why a large number of gametes are released into water. तो चिल्ड्रन, इसका बेसिक मोटो यही है कि बहुत सारे जब गैमीट्स एक साथ पानी में रिलीज होंगे तो चांसेस जो हैं फर्टिलाइजेशन के वो इंक्रीज हो जाएंगे. राइट? This happens in the bony fishes and frogs where a large number of offsprings are produced. और इसीलिए जब chances of fertilization ज़्यादा होंगे, the more number of eggs will be fertilized by the male gamete or the sperm, definitely the more number of individuals will be produced into the surrounding medium, that is water.
मेजर डिसएडवांटेज, अब देखिए जो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू प्रेडेटर्स थ्रेटनिंग द सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। इस अंडरलाइन करिए इन दोनों लाइंस को, और यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज दी major threat or disadvantage to offsprings which are developed by the process of external fertilization। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जो यंग वंस जो प्रोड्यूस होंगे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, दे आर मोर वनरेबल टू द प्रेडेटर्स। प्रेडेटर्स मतलब उनसे जो बड़े जानवर उस पानी में जो प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, वो उन छोटे ऑर्गेनिजम्स को, ऑफस्प्रिंग्स को खा सकते हैं, प्रेडेट कर सकते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो कि अर्ली जिनका प्रेडेशन हो जाता है, दे डू नॉट अटेन देयर अडल्टहुड। क्लियर? In many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. We have all studied these different categories of plants in our 11th class. Syngamy occurs inside the body of the organism. Please switch on to page number 15, first paragraph, first line. The body of the organism, hence the process is called as internal fertilization. जितने भी ये हायर एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, इन सब के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, और ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस between internal and external fertilization? External fertilization जो होता है that takes place outside the body of the female, and internal fertilization takes place inside the body of the female. In all these organisms, egg is formed inside the female body where they fuse with the male gamete. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कौन सा गैमीट मोटाइल होगा? द मेल गैमीट इज मोटाइल, इट फाइनली रीचेस टू द फीमेल गैमीट, फ्यूजेस विद इट एंड फॉर्म्स द डिप्लॉयड फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द zygote. In organisms exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with it. In these, even though the number of sperms produced is very large, there is a significant reduction in the number of eggs produced. In seed plants, however, the non-motile male gametes are carried to female gametes by pollen tubes. देखिए क्या होता है, मेल एनिमल्स के अंदर जो मेल गैमीट है दैट विल रीच टू द फीमेल गैमीट बाय द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन. मेल गैमीट जो है वो मोटाइल है, फाइनली इट विल रीच इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड फर्टिलाइज द हेप्लॉइड फीमेल गैमीट और द egg cell, convert it into the fertilized egg or the zygote, which will be having a ploidy 2n, that is the double number of chromosomes. हायर एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, सीड प्लांट्स जो होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, बेयर करते हैं, वहाँ पे द नॉन मोटाइल गैमीट्स, वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्म्स में हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मोटाइल नॉन मोटाइल होते हैं. नॉन मोटाइल का मतलब है दे कैन नॉट travel on their own, they are dusted with the help of these some external agents which we have discussed in our last topic, pollination. These pollen grains when dusted on the stigma of the flower, they try to penetrate the stigma. Only a single pollen grain would penetrate into the stigma and form a pollen tube, and finally this pollen tube which is carrying the male gamete will ultimately reach to the फीमेल गैमीट एंड विल फर्टिलाइज इट. और ये जो ट्रांसफर होगा मेल गैमीट का, ये कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू होता है? थ्रू पोलन ट्यूब के थ्रू होता है. आई होप इट इज क्लियर व्हाट इज फर्टिलाइजेशन. डिटेल वी आर गोइंग टू टेक अप इन द सेकेंड एंड द थर्ड चैप्टर इन द एंजियोस्पर्म्स एंड द ह्यूमन बींग्स. अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. देखिए चिल्ड्रन, हमने फर्टिलाइजेशन को, पूरे इस प्रोसेस को हमने 3 हेड्स में स्टडी किया था. पहला हमने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, और अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चेंजेस अकर करते हैं, उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं.
Events in sexual reproduction after the formation of zygote are called post-fertilization event. Underline both the lines. क्या मतलब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का? पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब है वो चेंजेस जो किस में अकर करेंगे, जाइगोट के अंदर अकर करेंगे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट? Now we will discuss about zygote, which is nothing but the fertilized egg or a diploid cell. ठीक है? Formation of the diploid zygote is universal in all sexually reproducing organisms. जितने भी organisms हैं, चाहे वो plants हों, चाहे वो animals हों, जिनके अंदर sexual reproduction होता है, उनके अंदर universal phenomena है कि after the fertilization or syngamy, diploid zygote will be formed. In organisms with external fertilization, zygote is formed in the external medium, usually water, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism. ये basic difference है भाई किसमें? internal और external fertilization में. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट साहब कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वो इंटरनली बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट फॉर्म होता है वो जाइगोट कहाँ होता है साहब? इट इज इन द एक्सटर्नल मीडियम विच इज मोस्ट प्रेवलेंटली वाटर. क्लियर? Further development of the zygote depends on the type of life cycle the organism has and the environment it is exposed to. अब उस जाइगोट का डेवलपमेंट आगे कैसे होगा, वो किस तरह से डेवलप करेगा, किन कंडीशंस में डेवलप करेगा, उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एक्सपोज्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर. किस जाइगोट किस कंडीशन में एक्सपोज हो रहा है, उसके आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, उसके ऊपर उसकी एंटायर जर्नी ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड करती है. In organisms belonging to the fungi and algae, underline करें, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. अब देखिए क्या होता है, जो जाइगोट एक्सटर्नली डेवलप हो रहे हैं, ऑब्वियसली बात है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो जाइगोट भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर ही होगा. तो ऐसे जाइगोट को एक्सटर्नल कंडीशंस के अंदर, एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर अपने आप को बचा के रखना है, सरवाइव करना है. तो ये किन के अंदर होता है? फंगस और एल्गी के अंदर जो जाइगोट होता है वो अपने चारों तरफ क्या बना लेता है? एक थिक वॉल बना लेता है, एक बहुत ही रेजिस्टेंट मोटी वॉल बना लेता है. और ये जो थिक वॉल होती है ये उस जाइगोट को डेसिकेशन और डैमेज से प्रिवेंट करती है. डेसिकेशन का मतलब होता है उसका सूख जाना, और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है या उस जाइगोट के अंदर किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, नुकसान ना हो, उन चीज़ों से बचाने के लिए उस जाइगोट के चारों तरफ क्या डेवलप हो जाती है? एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है. और साहब ये थिक वॉल कौन से जाइगोट के अंदर डेवलप होगी? ऑब्वियसली बात है जो जाइगोट किससे डेवलप हो रहे हैं? जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू डेवलप हो रहे हैं. इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन. ऐसे जाइगोट जो होते हैं वो अपने चारों तरफ क्या करते हैं? थिक रेजिस्टेंट वॉल बना लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. और ऐसे जाइगोट जो होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक डॉर्मेंट सिचुएशन में रहते हैं. डॉर्मेंसी का मतलब होता है दे रिमेन अंडर अ पीरियड ऑफ रेस्ट. और कब तक रेस्ट पीरियड में रहेंगे, डॉर्मेंसी में रहेंगे? जब तक कि उनके चारों तरफ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस डेवलप नहीं हो जाएं. और जैसे ही उनको अपने चारों तरफ एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नजर आती हैं, दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग. क्लियर? इन ऑर्गेनिजम्स विथ हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, मतलब एक हेप्लॉइड गैमीट से जिनके अंदर लाइफ साइकिल शुरू होती है, उनके अंदर जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हेप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हेप्लॉइड इंडिविजुअल्स. एम आई क्लियर? हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में इन सब में हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं लाइफ साइकिल्स के बारे में, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मच इन डिटेल हियर. सो जाइगोट डिवाइड्स बाय ऐसे केसेस में जहाँ की एक हेप्लॉइड गैमीट से एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, वो ऑर्गेनिज्म आगे जाकर के मियोसिस से उसके अंदर जाइगोट जो होगा वो मियोसिस से डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद में वो वापस से क्या बनाएगा? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनाएगा. और वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स जो होंगे फर्दर एक प्लांट बॉडी को या एक नए इंडिविजुअल को ग्रो करेंगे. क्लियर?
Zygote is the vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next. Every sexually reproducing organisms, including human beings, begin life as a single cell, the zygote. Please underline कर लें इन तीनों लाइन्स को. zygote is the vital link that ensures. zygote एक ऐसा लिंक है जो इंश्योर करता है कि कोई भी स्पीशीज जो है वो अपनी लाइफ साइकिल को आगे कंटिन्यू करेगी. ऑब्वियस ही बात है, zygote जो होगा दैट विल ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. दिस zygote will further produce the gametes. Those gametes will further fertilize and again will result into the process of fertilization, zygote formation, and the process will continue. तो हम कह सकते हैं एक zygote जो है वो फर्दर जनरेशंस को बनाने में काम आता है. तो इसीलिए हम zygote को एक वाइटल लिंक मानते हैं जो कि किसी भी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है. एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, हर एक की लाइफ साइकिल किससे शुरू होती है? अ सिंगल सेल, द zygote से शुरू होती है. Is it clear to everyone? The basic structure of zygote. Detailed, children, we will take up in our next chapters. Now we will discuss the next topic, that is embryogenesis. Embryogenesis refers to the process of development of embryo from the zygote. zygote का एम्ब्रियो में डेवलप होना, कन्वर्ट होना इन द फर्दर कमिंग टाइम्स, इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं. During embryogenesis, the zygote undergoes cell division, mitosis and then cell differentiation. देखिए चिल्ड्रन, क्या होता है, zygote जो होता है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, वो धीरे धीरे क्या होगा, एनलार्ज होगा. एनलार्जमेंट कब होगा? जब उसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे. नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कब होंगे? जब zygote जो है दैट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एडिशनल सेल डिविजन, दैट इज द माइटोसिस, right? And after this zygote has attained the 32 cell structure which is called as blastula. After the formation of this 32 cell structure blastula, the cell differentiation phenomena would occur. हम पढ़ चुके हैं differentiation, de-differentiation and re-differentiation in our 11th class. डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है? उस ब्लास्टुला के अंदर जो अलग अलग सेल्स हैं वो सेल्स क्या बनाएंगी, अलग अलग जर्मिनेशन लेयर्स बनाएंगी, और ये जर्मिनेटिंग लेयर्स जो होंगी वो फर्दर किसी भी इंडिविजुअल के जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, पार्ट्स हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, उनका फॉर्मेशन करेंगी. तो डिफ्रेंसिएशन क्या है? सबसे पहले एम्ब्रियोजेनेसिस होगा. एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस क्या है? जिसमें zygote जो होगा वो एनलार्ज होगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. इट इज एन एडिशनल सेल डिवीजन वेयर द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स विल बी द सेम, द नंबर ऑफ सेल्स विल इंक्रीज, zygote एनलार्ज हो गया. zygote एनलार्ज होने के बाद में फिर zygote के अंदर जो अलग अलग बहुत सारे जो सेल्स बने हैं वो सारे सेल्स क्या होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे. डिफ्रेंशिएट होने का मतलब होता है कि वो सारे सेल्स जो हैं वो अपनी अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट होने के बाद में वो अपने अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे. तो ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्रेंसिएशन. While cell division increases in the number of cells in the developing embryo, cell differentiation helps groups of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs to form an organism. क्या हुआ साहब? जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन तो क्या करेगा साहब, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो. सेल डिफरेंशिएशन क्या करेगा, वो ग्रुप ऑफ सेल्स को डिफ्रेंशिएट करेगा, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस करेगा, चेंजेस करेगा, और करने के बाद में उनको स्पेशलाइज ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ में कन्वर्ट करेगा. और ये स्पेशलाइज ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज़ जो होंगे वो किसी भी इंडिविजुअल के डिफरेंट ऑर्गन्स को फॉर्म करेंगे, और ये पूरा जो प्रोसेस है ये मिलके क्या बनाएगा, एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेगा. राइट?
Animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of the zygote takes place outside the body of the female parent or inside. देखिए एनिमल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ओविपेरस एंड विविपेरस में. ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं और विविपेरस क्या हैं, ये बेसिकली एनिमल्स के अंदर डिफ्रेंसिएशन है जहां पे जाइगोट का डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल है या इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल है. इसका मतलब हो गया कि वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स और गिव बर्थ टू यंग वंस. ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि एग ले करते हैं, दे आर एग लेइंग एनिमल्स. एंड विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं उनका जो इंडिविजुअल्स का जो डेवलपमेंट होता है दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, राइट. In oviparous animals like reptiles and birds, please switch on to page number 16. The fertilized egg covered by a hard calcareous shell are laid in safe place in the environment. After a period of incubation, young ones hatch out. अब देखिए क्या होता है साहब, जो एनिमल्स एग ले करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है जब वो एग ले करेंगे तो उनके एग्स जो होंगे उनका डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर या फीमेल होगा. तो ऐसे एग्स के अंदर प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनको प्रेडेटर से बचाने के लिए कोई इस तरह का मैकेनिज्म उनके अंदर होना चाहिए. तो ये सब मैकेनिज्म क्या होता है, इन एग्स के अंदर जनरली एक कैल्केरियस शेल होती है जो कि इन एग्स को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द एनवायरनमेंट एज वेल एज अगेंस्ट देयर प्रेडेटर्स. क्लियर. और आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन क्या होता है, जब मदर बर्ड जो होती है वो एग्स के ऊपर बैठती है फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज और 21 डेज और उसके बाद में से उन एग्स में से हैचिंग होने के बाद में लिटिल यंग वंस आर कमिंग आउट. On the other hand, in viviparous animals, majority of animals including human beings, the zygote develops into a young one inside the body of the female organism. विविपेरस एनिमल्स वो हैं जो कि अपने यंग वंस को अपने ही बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर रिटेन करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे गिव बर्थ टू यंग वंस. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स के अंदर द कंप्लीट डेवलपमेंट पीरियड या जेस्टेशन पीरियड जो होता है बेबी का दैट इज 9 months. द होल डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द मदर्स womb or mother's body, and when the child or the baby or the fetus is completely developed, then the mother gives birth to its young ones. तो ऐसा डेवलपमेंट जो मदर की बॉडी के अंदर होता है उन ऑर्गेनिजम्स को हम विविपेरस एनिमल्स कहते हैं जो कि एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं, वो विविपेरस एनिमल्स कहलाते हैं. और ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, जो कि एग लेइंग होते हैं, जो अंडे देते हैं. After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism. Because of the proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in the viviparous animals. Obvious ही बात है भाई, viviparous animals के अंदर क्या है, जो fetus है वो completely protected है inside the mother's womb और the mother's body. तो definite सी बात है कि वहाँ पे उसका बेबी का या fetus का complete protection हो रहा है, तो वहाँ पे उसके survival के chances ज़्यादा हैं. Whereas in case of oviparous animals which are especially giving birth laying eggs, their survival chances are less because such eggs are more vulnerable to the predators, to the external harsh environmental conditions, and the survival chances are very low. In flowering plants, the zygote is formed inside the ovule. After fertilization of the sepals, the sepals, petals and stamens of the flower wither and fall off. हम पढ़ चुके हैं 10th के अंदर भी कि भाई जब एंजियोस्पर्म्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट फॉर्म होता है. और जाइगोट के अलावा फ्लावर की और जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, ओवरी के अंदर हो रहा है. ओवरी ग्रेजुअली एनलार्ज होने लग जाती है साइज के अंदर, और फ्लावर के जितने भी एसेसरी वर्ड्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन्स हैं, ये सारे के सारे श्रिवल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं. कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच्ड? यस, एग्जाम्पल कैन बी ब्रिंजल, लेडी फिंगर, ग्रीन चिलीज, टोमेटो. ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सेपल्स, परसिस्टेंट सेपल होता है. परसिस्टेंट सेपल का मतलब है आफ्टर द ओवरी हैज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट द सेपल डज नॉट डीजेनरेट, वो उनके ऊपर रहता है. जैसे हमने बैंगन की कलंगी, भिंडी की जो टोपी होती है ऊपर की, वो सब क्या है, परसिस्टेंट सेपल्स हैं.
The zygote develops into the embryo and the ovules develop into the seed. The ovary develops into the fruit which develops a thick wall. अब जब ओवरी एनलार्ज हो रही है तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है? फाइनली फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है. जब ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी तो वो अपने चारों तरफ क्या बना लेगी? एक थिक वॉल बना लेगी. और इस थिक वॉल को हम क्या कहेंगे साहब? पेरिकार्प कहेंगे. अंडरलाइन कर ले. विच इज अ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. After dispersal, seeds germinate under favorable conditions to produce new plants. So, the ovary is converting into fruit. After the fruit has been formed, the fruit will develop a thick wall around it, which is called as the fruit wall or the pericarp, which is generally protective in nature. और उसके बाद में जब फ्रूट जो है जब वो पूरी तरह से प्लांट के ऊपर पक जाएगा, पकने के बाद में वो जब डिहाइस होगा, डिहाइस होने पे उसके जो सीड्स होंगे वो सीड्स क्या होंगे? दे विल डिस्पर्स इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड फाइनली दे वुड कन्वर्ट इनटू अ न्यू प्लांट. So children, this is all about your chapter reproduction and organisms. It is a basic chapter which is dealing with the general terminologies which we are going to use in a further upcoming chapters, that is chapter number 2 and 3. Now your homework is, please complete the question answers given in your NCERT exercise on page number 17 and 18.